یسوع مسیح کے عظیم اور بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کا شکر ہو جس نے ممکن کیا کہ آج کا خوبصورت پاک سبت میری خوبصورت منگل میٹنگ خدا کی عبادت کا دن ہمارے لیے خدا نے بخشا ہے اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کو مبارک کہتے ہیں. خدا بھلا ہے اور اس کا رحم اس کے ڈرنے والوں پر پشت رہتا ہے. آئے سب مل کر خدا کے پاک روح کو زوردار تالیوں میں ویلکم کریں. ہاللیلویا. ہالی اسپرٹ پاک روح ویلکم ویلکم. پاک روح تیرا شکر ہو. آمین. سو آئیں اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سیکھیں ہم ذرا پیچھے چلے جائیں گے. پچھلے جا کے یاد کریں گے کہ ہم نے پچھلی منگل میٹنگ کے اندر کیا خدا کا کلام کچھ سیکھا تھا. کچھ تھوڑا بہت آپ کو یاد ہو کس بات کے بارے میں سیکھا تھا. جی بڑے بڑے بوجھ ٹوٹ جائے گا. ان کے چشم پانی سے ان کی آنکھیں جل جائیں گی اور ان کی زبان سڑ جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا تھا کہ جو قومیں مثال و سال خداؤں کے ضروری کے قیام بنانے کے وہاں آئے ان پر کون سے عذاب نازل ہو. آمین. جی اور مسٹری آپ کو کچھ یاد ہو آئے نہیں مسٹر بین تھی نہیں چلیے تو آپ آیا کریں. میں کہتی ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت خدا کا کلام ہے کیونکہ اگر آپ مس کر دیں گے تو شاید پھر دوبارہ آپ کو موقع نہ ملے. اور آپ جتنا بھی خدا کے کلام کے بارے میں سیکھیں گے آپ کو اتنی برکات بھی ملے گی اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ایک بڑا خوبصورت میسیج ٹاپک ہے جو ہم اگلے ہفتے کی شام کو منانے والے ہیں. نرسنگوں کی عید. نرسنگوں کی عید کے بارے میں جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک کسی بات کے بارے میں ہم اچھے طریقے سے واقفیت نہیں رکھتے جانتے نہیں اگر ہم اس کو منائیں بھی تو شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن اس کے بارے میں آج ہم کلام سیکھیں گے. تو آئیں کہ نرسنگا کیا چیز ہے کس بات کی یہ تائید کرتا ہے اور نرسنگے کا میننگس کیا ہے. آئیں میرے ساتھ ذرا دیکھیں جی یسایہ کی کتاب مقدس میں سے یسایہ اس کا 58 باب 58 باب اور اس کا آیت نمبر جی پہلی سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. آئیں مس کے ساتھ مل کر خدا کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اس کی پہلی آیت سے ہی پڑھیں گے ایک آیت کو مکمل کریں گے. یسایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام ہے جی اس کا 58 باب اور اس کی پہلی آیت. یسایہ 58 اس کی آیت نمبر 1. گلا پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر. سنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور تیرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. آمین. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. آمین. کلام مقدس میں خدا کے بندہ یسایہ نبی کو یہ خدا نے کلام دیا ہے. گلا پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. آمین. یہ آج کا خوبصورت میسیج ہے. یہ ٹاپک ہے کہ گلا پھاڑ کر چلانا ہے. ہم نے دریغ نہیں کرنا. ہم نے چھپانا نہیں ہے اس کلام کو. ہم نے اس کو کلام مقدس میں یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں ایک بڑا خوبصورت بیان دیا. خدا نے فرمایا کہا کہ کوئی چراغ جلا کر پلنگ کے نیچے تو نہیں رکھتا. کہاں رکھتا ہے بلکہ اونچی جگہ پر چراغ دان پر تاکہ آنے جانے والوں لوگوں کو روشنی ہو. گھر کے اندر جو رہتے ہیں ان کو کچھ نظر آئے. تو اسی طرح ہمیں بھی کلام کو سکھانا ہے لوگوں کو بتانا ہے دبانا نہیں. ہم نے گلا پھاڑ کر دریغ نہیں کرنا بلکہ چلانا ہے. اور نرسنگا کیا ہے؟ نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے. بلند کر. نرسنگا جو ہے وہ پہلے وقت میں جب پھونکا جاتا تھا کہ لوگ سانس باندھ کر نرسنگے پھونکنے کے طریقے تھے. بائبل مقدس کے اندر لکھے ہوئے ہیں واضح طور پر کتاب مقدس میں خروج بار میں کہ کس طرح کا نرسنگا پھونکا جائے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کس طرح سے مختلف طریقوں سے. وہ اور ٹاپک ہے میسیج ہے لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتی ہوں کہ اس طرح سے لکھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں آج نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. کلام کو سنانا ہے مجھے اور خدا کے خادمین کو اور آپ کو سننا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ نرسنگے کی مانند. نرسنگا آج خدا کا کلام ہے اور یہ کلام اگر آپ سیکھ رہے ہیں آپ جان رہے ہیں تو یہ کلام آپ کو بادشاہی پر لے جائے گا.
یہ آپ کو کلام ہی سکھائے گا اور آپ کو توبہ کرنے کی یہ توفیق بخشے گا. یہ توبہ کرنے کے لیے آپ کے دل کو نرم کر دے گا, آپ کے گناہوں کو دھو دے گا. آپ اس قدر خدا کے پاس آ جائیں گے, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو لوگوں پر, میرے لوگوں پر, کن پر, ان کی خطا اور یعقوب کے گرانے پر ان کے گناہوں کو کیا کر ظاہر کر. کیا آج اگر کسی کے گناہوں کو ظاہر کیا جائے اور اسے کہا جائے توبہ کر کیونکہ تو گناہ گار ہے, تو کیا کس طرح کی کنڈیشن ہے لوگ؟ کیا لوگ برا نہیں مانتے؟ جبکہ ان کے بھلے کی بات ہے. یہ خدا کا کلام نبی سے کیا گیا, خداوند نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے گناہ ظاہر کر دے تاکہ وہ بچ جائیں. اگر وہ کہیں غلطی پہ ہیں تو گناہ کا اقرار کر کے توبہ کر کے ترک کریں, کیونکہ مثال کی کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے, پر جو اس کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتے ہیں ان پر کیا ہوگی؟ خداوند کی رحمت ہوگی. جس پر خدا کی رحمت ہو جائے, خدا کا رحم ہو جائے, وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے, اس کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. ابھی ہم گیت بھی گا رہے تھے بہن کے ساتھ مل کر کہ جنہوں نے معافی مل گئی انہوں دے بھاگ جا کے. تو پھر ہمارے باغ جاگ گئے ہیں کہ ہم نے توبہ سچے دل سے اگر کر لی ہے, پھر توبہ کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بھی گزاری. اس لیے گلا پھاڑ اور دریگ نہ کر, نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو کیا کر, بلند کر. نرسنگا خدا کے کلام سے تشبیہ دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ جو روحانی طور پر نرسنگا ہے وہ کس طرح سے پھونکا جاتا ہے اور کس طرح سے ہمیں خدا کے کلام میں پورا کرنا. استشنا کی کتاب میں سے ایک حوالہ دیکھیں جی, استشنا اس کا 16 باب اور اس کی آیت نمبر 16. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, جو بہن بھائی اس بات پر بلیور نہیں ہے کہ عید یہ کیسی مسیح عید منا رہے ہیں, یہ لوگ تو اس کلام کو پڑھیں. آج یہ خوبصورت کلام بائبل مقدس میں سے, یہ میرے کلام نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ نبی سے فرمائی ہیں. استثنا 16 کی 16 آیت با کلام مقدس خدا کے کلام کے مطابق ہم اسے پروف کے ساتھ پیش کرتے ہیں. 16 کی 16 آیت جی. استثنا 16 باب کی 16 آیت اگر آپ نے نکال لیا تو آپ پڑھیں, جس نے نکال لیا وہ جلدی سے پڑھیں جی. پڑھو 16 باب کی 16 آیت. اور سال میں 3 بار یعنی عید اور عید قیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا, اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئے, بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے. آمین. کلام میں لکھا ہے اور سال میں 3 بار, کتنی بار؟ 3 بار بے خمیری روٹی کی عید, ہفتوں کی عید, عید قیام کے موقع پر, یہ دیکھے غور سے, عید قیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد کیا کریں؟ خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں. ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مردوں کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ اپنی فیملی کا سربراہ ہوتا ہے. جو ایک مرد ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کا سارا نظام چلاتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب ایک مرد ایک عورت کو لے کر جاتا ہے اپنے گھر سے کہیں بھی کسی جگہ پر, اپنے پورے خاندان کو, اپنے بچوں کو لے کر گائیڈ کرتا ہے, تو اسی لیے خدا نے مردوں کو حکم دیا کہ مرد اپنے بچوں سمیت, اپنے گھرانے سمیت, اپنی بیوی, اپنے خاندان سمیت خدا ان کے حضور کیا کریں, آئیں. مرد کا ذکر اس لیے آیا ہے, یہ نہیں کہ عورت کو خدا نے علیحدہ کر دیا, یہاں لکھا ہے سب مرد خدا اپنے خدا کے حضور اسی جگہ پر حاضر ہوا کریں. کون سی جگہ؟ جسے وہ چنے, جسے آج ہم خدا کا گھر کہتے ہیں, جسے ہم چرچ کہتے ہیں, جسے ہم خداوند کی حضوری کہتے ہیں. اس جگہ کو جہاں خدا کا نام ہو, چن لیا گیا, وہ حاضر ہو. اور کلام میں لکھا ہے وہ جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں. خالی ہاتھ نہ آئیں. جو سال بھر کی کمائی میں سے خداوند نے ان کو توفیق بخشی ہے, جس قدر وہ کماتے ہیں, جس قدر وہ محنت کرتے ہیں, خدا ان کو بلیس کرتا ہے. خدا کا کلام میں لکھا ہے بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق کیا کرے, خداوند کے حضور ہدیہ اور جو کچھ بھی وہ دینا چاہتا ہے انویسٹ کرے, دے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ عید قیام کے موقع پر. تو اس طرح خدا کا کلام, اگر آج میری بہنوں, خدا کی بیٹیوں, اگر ہمارے ہاں مرد حضرات آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ تو خدا کی بیٹیاں کلام سنتی ہیں, آپ اس کلام کو اپنے دل میں رکھ کر غور کریں. اگر آپ پڑھے لکھے مرد ہیں, شوہر پڑھے ہیں, بہن بھائی پڑھے, تو ان کو جا کے سکھائیں. اگر نہیں تو آپ اس بات کا ضرور واضح طور پر ان کے ساتھ اظہار کریں تاکہ وہ پوری طور پر برکت پائیں, کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. آئے پھر دیکھیں نرسنگے کے بارے میں. گنتی کی کتاب خدا کے کلام میں سے میں نے ابھی یہ عید قیام کا بتایا, کیونکہ یہ اب یہ عیدیں جو شروع ہو رہی ہیں یہ عید قیام کی ساری مقرر کردہ عیدیں ہیں, اور سٹیپ در سٹیپ یہ چلتی رہیں گی اور ہم برکت پاتے رہیں گے. جی
गिनती की किताब उसका 10 बाब और उसकी पहले आयत से खुदा का खूबसूरत कलाम देखेंगे। ये नरसिंगा फूंकना ज़रूरी है और ये नरसिंगों की ईद मनाना ज़रूरी है। अभी मैं आपको डिटेल के साथ एंड तक बताऊंगी कि नरसिंगे का मकसद कहाँ तक पूरा होगा और कहाँ जाकर इसका हमारा खुदा हमें सिखाएगा और हमें बताएगा कि किस तरह इसका मकसद है। पहली आवाज़ हमने गला फाड़कर दरेक नहीं करना, चलाना है और नरसिंगे की मांद अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के सब मर्द खुदा के हज़ूर अपने ख़ानदान घराने समेत हाजिर हों, खाली हाथ ना हों, ईद क़याम मनाने के लिए आएँ। और अब गिनती की किताब 10 बाब में से पहली आयत में से चांदी के नरसिंगे, जी पढ़ें जी हवाला पहले 10 बाब की पहली आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़कर बनाए जाएं, तो उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे घूमें तो सारी जमात इज्तिमा के दरवाज़ा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है चांदी के 2 नरसिंगे खुदा के नबी को खुदा ने हुक्म दिया बनवाए जाएं और ये दोनों घड़कर चांदी से बनाए जाएं, उनको जमात के बुलाने के लिए, लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। क्योंकि जब बनी इसराइल जगह जगह अपने टेंट लगाते थे, खैमे लगाते थे, जब मौसम अच्छा हो जाता था आगे से खुदा तैयार कर लेता था उनके लिए जगह, तो खुदा फिर उनके आगे आगे चलता, उनको कहता था यहाँ से खैमे उठाओ, आगे चलो, तुम्हें क्योंकि मुल्क कुनान वादे की सरजमीन पर जाना है। इसलिए वो नरसिंगा फूंका जाता था। वो लोग हज़ारों हज़ार की सूरत में थे और वो लोग नरसिंगे की आवाज़ सुनकर जमा होते थे, कहते थे खुदा का नबी अब हमें कुछ कहने वाला, खुदा की तरफ से हमारे लिए कोई हुक्म आए। आज जब नरसिंगा फूंका जाता है, खुदा का कलाम आपको खादम सुनाते हैं और आपको बुलाते हैं, तो आप ये काम है कि आप खुदा के ज़रूर हाजिर हों खुदा के चर्च में, ताकि आप भी तैयारी करें। अब वो तो मुल्क कुनान में जाने के लिए तैयारी करते थे, वो तो एक वादे की सरजमीन जो खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से, इसहाक, याकूब से वादा किया जाना चाहते थे, यहाँ दूध और शहद था। लेकिन आज हम कौन से शहर में जाना चाहते हैं? आपको मालूम है कहाँ जाना है? हम नरसिंगे की आवाज़ को किस लिए बुलंद कर रहे हैं? हम किस लिए ऐसा कर रहे हैं? क्यों? हम कहाँ जाने वाले हैं? हम नए यरूशलेम में जो आसमान पर हमारे लिए तैयार किया गया है, उसमें जाने के लिए तैयारी के लिए आपके नरसिंगा फूंका जाएगा और जाता है ताकि आप तैयारी करें। क्योंकि कलाम में लिखा है जब जमात खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर तेरे पास क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाए। तो क्या लोगों का इकट्ठे होकर, हम सब का इकट्ठे होकर इबादत करें और सिंगों का फूंकना और पस्तिश करना क्या लाजिम नहीं? ये खुदा का हुक्म है। सो आए दूसरा हवाला देखिए खुदा के कलाम में से, नरसिंगों के बारे में से। मेरे साथ चले पीछे, इसके पीछे आ जाए अबार की किताब में से, अबार की किताब उसका 23 बाब, थोड़े सफ़े पलटे पीछे इसके, अबार की किताब उसका 23 बाब है जी। अगर जब तक आप किसी चीज़ को मना रहे हैं, आप उसके बारे में आपको मालूमात और वाकफियत नहीं, तो आप मेरा ख्याल अच्छे तरीके से उसे मना नहीं सकेंगे। आज आप सीखेंगे तो आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि आप किसी बात में शक नहीं करेंगे, कोई आपको आपकी राह से नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है। अबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी 23 आयत में खुदा का कलाम पढ़ेंगे। 23 बाब की 23 आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह के 7 दिन की 7वें महीने की 7वें दिन की पहली तारीख तुम्हारे लिए पास हराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगा फूंका जाए और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज कोई खासा काम ना करना और खुदावंद के हजूर आजानी कुर्बानी गुजराना। आमीन। कलाम में लिखा है खुदावंद ने मूसा से कहा। किसने कहा जी? खुदावंद ने कहा। अब लोग क्यों इतराज करते हैं कि ये यहूदियों की ईद है, ये यहूदी हैं, ये फला। हम किसको मानते हैं? हम खुदा को मानते हैं। हम खुदावंद के पैरवर हैं। हम किसी यहूदी के या किसी भी मिशन के तहत नहीं, बल्कि किसके? खुदावंद ने कहा अपने नबी से। खुदावंद आज पाक रूह मुझसे और आपसे कहता है, बनी इसराइल से कह, वो बनी इसराइल पुराने अहद की थी। हम बनी इसराइल खुदा के खून की कीमत से, बेटे के खून की कीमत से खरीदे गए, यीशु मसीह से पैदा हुए, चुन लिए गए। वो भी चुन लिए गए थे। बनी इसराइल का मतलब है चुन लिया जाना, उनको अलग कर लिया जाना। आज हम भी दुनिया में से चुन लिए गए और हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम पे मोहर हो गई है, मुखलसी के लिए मोहर हो गई। उसने हमें अपने नाम की खातर
ब्लेस किया और हमें कहा ये मेरी बेटी है, क्योंकि कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसमें लिखा है न जिस्म से न इंसानी इरादे से, बल्कि जिस किसी ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया वो किस में से पैदा हुआ? खुदा में से पैदा। तो हम जब खुदा में से पैदा हुए तो फिर किसने ये कहा? खुदावंद ने कहा। जब खुदावंद ने कहा तो फिर हमें खुदावंद के हुक्म को माना, या किसी पास्टर की या किसी मिशन की या किसी दुनिया के रस्म को माना, बल्कि किसकी ईद है? खुदावंद की। खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कहा 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूके जाए। ये जो ईद हम मना रहे हैं ये खुदा के हुक्म के मुताबिक नरसिंगे फूके जाने की ईद है। मुकद्दस मजमा क्या हो जी? मुकद्दस महफिल, मुकद्दस मजमा, लोग जमा हो। और कलाम में लिखा है उस रोज़ कोई नहीं आज मैं मशीन लानी है, नहीं आज मैं रिश्तेदार घर जाना, खादमाना काम, खादमा अपने घराने काम कुछ नहीं करने, अपनी रात से तैयारी करके रखना और खुदा अपने खुदा के ज़रूर अपने पूरे घराने समेत, खानदानों के समेत, मर्दों औरतों बच्चों के साथ इस ईद को बनाना। और कलाम में लिखा खुदा के ज़रूर आज छीनी कुर्बानी गुजराना। वो आज छीनी की कुर्बानी इस तरह मज़बा पर आग जलती थी, उसके ऊपर लकड़ियाँ चुनी होती थी और मैदा लाते थे, उसके साथ वो घी लाते थे, उसके साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें थी बखूर लाते थे और उसको जलाते थे। खुदा का काहिल लेता था, उसको जलाता था और खुदा की प्रस्तिश करते थे। उनकी आशीनी कुर्बानी खुदा के ज़रूर पहुँच। लेकिन आज हम खुदा के मज़बा पर खुदा के बेटे के कुर्बान होने जाने के बाद अपने होठों की कुर्बानी, आशीनी कुर्बानी शुक्रगुजारी की चढ़ाएंगे और खुदा की तारीफ़ करेंगे, खुदा की प्रस्तिश करेंगे, जी भर कर नरसिंगे फूके जाएंगे, हम प्रस्तिश करेंगे। हम आज चीनी कुर्बानी अपने होठों का फल, जिस तरह रसूल कहता है अपने होठों की कुर्बानी का फल खुदा उनके मज़हब पर हमें हर रोज़ चढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ये दिन जो ख़ास मुक़द्दस मजमा का दिन है ये यादगारी का नरसिंगों का, इसलिए नरसिंगों की ईद है। आमीन, ये बात है। आए मेरे साथ एक और हवाला देखें, नरसिंगे किस लिए बजाय, नरसिंगे का मतलब क्या है। आए मेरे साथ देखें, योएल नबी की मार्फत खुदा का कलाम है, योएल की किताब, इसको बिल्कुल एंड में चले जाएं। योएल को ये रोज़े के लिए है, लेकिन अभी अमूस के सीफा में से हम पढ़ेंगे। अमूस उसका 2 बाब, ये भी इसी के साथ है, बिल्कुल एंड में, मत्ती की इंजील से कुछ पहले। आप हवाले ढूंढें क्योंकि आप बहुत कम बाइबल का खोलते हैं, इसलिए अमूस की किताब, अमूस 2 बाब, इसमें भी नरसिंगे का जिक्र है, दानियल के साथ है। अमूस योएल के साथ ही अमूस है। अमूस की किताब बिल्कुल पीछे मत्ती की इंजील के पास आए, अमूस 2 बाब। ये रोज़े का कलाम फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे, जब जिस दिन हम रोज़ा रखेंगे उस दिन खुदा मुझे और आपको फिर कलाम बख्शेगा, हम रोज़े के बारे में भी बात करेंगे। अमूस की किताब उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 5, 2 बाब की आयत नंबर 5 से खुदा का कलाम सीखेंगे। बस मैं यहूदा पर आग भेजूंगा। नहीं जी, अमूस की किताब उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर देखें जी, सॉरी ठीक है, ये सोरा वाला 3 बाब है, 3 बाब की आयत नंबर 5 देखें जी। 3 बाब की आयत नंबर 5 पढ़े जी। क्या कोई चिड़िया जमीन पर दाम में हंस सकती है? जबकि उसके लिए दाम ही ना उठाया गया हो। क्या फंदा जब तक कि कुछ न कुछ उसमें फंसा ना हो जमीन पर से उछलेगा? क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फंदा जाए और लोग ना कांपे? या कोई बिला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजारों नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। आमीन। कलाम में लिखा है क्या फंदा जब तक उसमें कुछ फंसा ना हो ज़मीन पर उछलेगा? अगर एक जाल बिछाया गया, जब उसके अंदर चिड़िया ना फंस जाए, एक मिसाल दी गई, तो क्या वो जाल ऊपर नीचे हो सकता है? चिड़िया अंदर फंसेगी तो वो तड़पेगी। अब हम गुनाह की ज़िंदगी के अंदर फंस चुके थे, शैतान ने फंदा लगा लिया था और हमें फंसा लिया था और हम मुसीबतों में, दुखों में, गुनाहों में तड़प रहे थे। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है क्या मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे? खुदा के खादम मुनादी करें, कलाम सुनाएं और नरसिंगे की मांद लोगों को बचाएं और कहें कि खुदा यीशु जल्द बादलों पे आने वाला है और हर इंसान को उसके माल के मुताबिक अजर मिलने वाला, तौबा कर लो।
तो नरसिंगा फूंका जाए तो कलाम में लिखा है लोग ना कांपे, अगर वो सुने तो ज़रूर कांपे, जो ईमान रखे वो ज़रूर कांपे, वो कहे कि खुदा ऐसा करेगा, खुदा आने वाला है, वो अदालत करेगा। अमूस नबी खुदा का बंदा कहता है कि वो या कोई बला शहर पा रहा है, खुदा ने उसे ना भेजा। कलाम में लिखा खुदा जब तक किसी इंसान पर आफत नहीं भेजता जब तक उसे इश्कारा ना कर दे, जब तक उस शख्स को बचाने के लिए किसी ना किसी नबी को, किसी ना किसी बंदे को अपने को उसके घर ना भेजे, कलाम देकर उसकी ज़िंदगी में एक दफ़ा उसे तौबा की तौफीक ना दे, उसे खुदा ज़रूर एक दफ़ा चांस देगा कि वो शख्स तौबा कर ले, फिर ले, बदी से बाज आ जाए, ताकि वो आफत उस पर ना आए। लेकिन अगर उस शख्स ने तौबा कर ली, तौबा के मुआफिक उसने कान धरा, नरसिंगा फूंका गया, कलाम सुनाया गया, तो फिर तो वो बच जाएगा। पर अगर उसने कान बंद किए, उसने सुनी अनसुनी की तो शैतान उसको ज़रूर उस पर वो ज़ख्म लगाएगा जो लगने को है। कलाम बयान करता है क्योंकि यकीनन खुदा कुछ नहीं करता, खुदा कुछ नहीं करता, कोई मुसीबत खुदा पर, इंसान पर नहीं भेजता जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले इश्कारा ना कर दे। जब तक कोई भेद, जब भी किसी पर मुसीबत आनी हो, अपने नबी पर, अपने रसूल पर, अपने बंदा पर, अपनी बंदी पर आश्कारा ना कर दे, खुदा उसको शर्तन कलाम देगा कि तू इस शख्स को कह, वो चाहे आपको कहे दुआ करो, चाहे वो आपको कहे आप सरगर्म हो जाओ, चाहे वो आपको कहे आपकी दुआ के अंदर कमी है, आप खुदा आपको चर्च के लिए दावत दे, आपको इबादत में रुकने के लिए दावत दे, आपको अपने घर में प्रेयर करने के लिए कहे, आपको रोज़ा रखने के लिए कहे, आपको कुछ भी कहे, हो सकता है खुदा का कलाम वाज़िया तौर पर खुदा के खादम पर नाज़िल हो, लेकिन वो आपको क्यों पहले कहा था यशायाह ने कि उनका गुनाह उन पर ज़ाहिर कर। तो अगर आज हम किसी को कह दें तो क्या वो गुस्सा नहीं करेगा? वो तो मार दो, वो चर्च छोड़ देगा। ऐसा ही वो कहेगा कि मुझे चर्च नहीं जाना क्योंकि इस शख्स ने, इस पास्टर ने, इस खादम ने मुझे तो मेरे मुंह पे, जिस तरह सामरी औरत की एक बात ही उसने खोल खोल बता दी, तो उसने क्या गुस्सा किया? उसने कहा ये तो नबी लगता है, इसने तो सारी बातें मुझे बता दी। उसने कहा तेरे तो 5 शोहर हैं, 4 तो पहले कर चुकी, 5वां अब तेरे पास। तो कहती मेरा तो कोई शोहर नहीं। हम झूठ तो बोलते हैं लेकिन हम खुदा के सामने ऐसा नहीं कर सकते। नरसिंगे की मांद अपनी आवाज़ को बुलंद कर अपने अंदर से पाक कर दे, क्लियर कर ले, सब कुछ सही होगा। खाली यही नहीं हमने दुआई करनी, हमने लंबी लंबी दुआएं करनी है, दुआएं नहीं, प्रैक्टिकल अमल अंदर से करके आपने करके फिर मांगना है, फिर आपने कहना है खुदा ये ऐसा मुझे शिफा भी दे, मुझे निजात भी दे, मुझे हमेशा की ज़िंदगी भी दे, मुझे खुशहाली भी दे, मेरी बीमारी को भी ठीक कर। नरसिंगे की मांद जो कलाम आपसे किया गया उसे पलेथन वाले, मक्खन वाले, भैन जी सलाम, भाई जी सलाम, थोड़ी सलामती हो, तुसी ठीक ठाक हो, मैं दुआ की थी, थोड़ी फलानी शह मिल जाएगी, ऐसे खादमों के चक्कर में ना आए। कलाम थोड़ी देर के लिए आपको सख्त कड़वा लगेगा लेकिन आपके अंदर जाकर ये मीठा हो जाकर आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। आप निजात पा जाएंगे, आप रिहाई पा जाएंगे, आप खुशहाली पा जाएंगे, आपकी नस्लें बच जाएंगी, आपके बेटे बेटियां और आने वाली तमाम नस्लें जो आजकल की आफत लोगों पर आ रही है, आप देख रहे हैं किस किस तरह की आफतें लोगों पर आ रही है। हर एक घर की एक नई स्टोरी है, हर एक घर के अंदर एक अजीब किस्म की कैफियत चल रही है। जिस तरह की सिचुएशन लोगों की मैं देखती हूँ कि हर शख्स अपने गुनाह को छुपाकर उसे दबाने की कोशिश करता है लेकिन गुनाह नहीं छुपता, थोड़े दिनों के बाद वो गुनाह सामने आता है। तो इससे बेहतर नहीं कि हम उस गुनाह का इकरार करके, हमें लोगों की परवाह नहीं, हमें इकरार करके उसको तर्क करके नरसिंगे को सुनना, खुदा के कलाम को उसको अपनी ज़िंदगी में लेना। ये है नरसिंगा। आए लास्ट नरसिंगा देखते हैं, वो नरसिंगा जो है वो कब फूंका जाएगा और नरसिंगे पूरे हो जाएंगे। आए मकाशवा की किताब में से हम देखेंगे, मकाशवा की किताब उसका 10 बाब और उसकी 5 आयत। नरसिंगे का मतलब क्या है? नरसिंगा, अब ये नरसिंगे तमाम मेरे और आपकी निजात के लिए, माफ़ी के लिए, तौबा के लिए, इबादत के लिए, खुदा की सूरी के लिए। लेकिन जो लास्ट नरसिंगा फूंका जाएगा, जो आने वाले वक्त की पेशगोई कर रहा है, मुकाशफा की किताब जो ईद हम मनाते हैं, इसका असल मफहूम मेरे और आपकी समझ में आ जाएगा। उसकी 5 आयत देखिए, 10 बाब की 5 आयत से खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें जी। मुकाशफा की किताब उसका 10 बाब और उसकी 5 आयत। सिकंदर और उसकी पर खड़े देखा था, उसने अपना धन्ना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना हो, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में जब तो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदावंद का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को भी पूरा होगा। आमीन।
कलाम में लिखा है, एक फरिश्ता है जो समुंदर और खुश्की पर खड़ा देखा है। उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, उठाया और अब्दुलबाज जिंदा जो रहेगा उसने उसकी तारीफ़ की है, उसकी गवाही दी है, जिसने आसमान और ज़मीन और उसकी चीज़ें, जो ज़मीन और उसके ऊपर और समंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की। वो कौन है? वो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा, वो मेरा और आपका खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा यीशु मसीह नासरी है। कलाम में लिखा, उसकी कसम खाकर कहा अब देर ना होगी, अब देर नहीं है। यीशु ने पहले कह दिया, आसमान पर तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक हो, देर नहीं। जिस तरह की दुनिया की सूरत बदलती जाती है, जिस तरह के हालात पैदा अब दुनिया में होते जा रहे हैं, अब देर ना होगी। वो कहता है बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में जब नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पशीदा मतलब उसकी खुशखबरी के मुआफिक जो खुशखबरी हमें सुनाई गई है, जो खुशखबरी हमें सुनाई जाती है चर्चों में कि तैयारी कर लो, यीशु बादलों पे आने वाला है, नरसिंगा फूंका जाने वाला है। उस वक्त लास्ट नरसिंगा फूंका जाएगा जो नरसिंगों की ईद हम मना रहे हैं। वो उस वक्त आखिरी फरिश्ता 7वां नरसिंगा फूंकेगा, ज़ोर की आवाज़ से गरजे, और खुदा के कलाम में लिखा है बिजलियाँ पैदा होंगी और अजीब तरीके से ज़मीन और आसमान हिल जाएंगे और लोग मारे गम और खौफ के उनकी जान के अंदर जान ना रहेगी। मत्ती की इंजील में लिखा है, और लोग मुसीबत में कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर, टीलों हम पर हमें छुपा, हमें बरा के गज़ब से बचा लो। कलाम बयान करता है उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों और नबियों को दी थी पूरी होगी, जो आज हम खुशखबरी सुना रहे हैं, जो हम आज ईद मनाने वाले हैं। अगले हफ्ते की शाम को नरसिंगों की ईद होगी। ये नरसिंगा यीशु मसीह की आमद के लिए, ये यीशु मसीह की आमद आने को बयान करता है, इसलिए हम ईद मना रहे हैं कि यीशु तो जल्द आने वाला है, नरसिंगा फूंका जाने वाला है। हम सब मुक़द्दस मजमा लगाकर अबार की किताब के मुताबिक, गिनती के मुताबिक और खुदा के बंदा अमूस नबी के मुताबिक, यसाया नबी की मार्फत कलाम नरसिंगे की मान हम सुनेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में लेंगे। नरसिंगे फूंके जाने की प्रैक्टिकल रिहर्सल होगी और इसके बाद फिर हम यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी करेंगे। ये हमारी फेथ, हमारे ईमान का असल मकसद है। नरसिंगों की ईद मनाने का असल मकसद है ये ना किसी के मुकर्रर करता है, ना किसी पास्टर की तरफ से आया है, ना किसी कलीसिया की तरफ से आया है और ना ही किसी ने अपने ज़हन से निकाला, बल्कि ये कैसे है बाइबल मुकद्दस के अंदर नरसिंगों की ईद, यीशु की आमद, यीशु मसीह की आमद की तैयारी है। इसलिए हम कलाम सीखते हैं, हम तलीम पाते हैं, इस लिए में हम आपको शामिल करते हैं। हमने जिस तरह ईमान पाया उस ईमान में हम सब मिलकर मुकद्दस मजमा खुदा यरूशलेम चर्च, न्यू यरूशलेम चर्च कलीसिया खुदा उनके साथ मिलकर करेंगे। और यीशु जैसे ही बादलों पे आएगा, अगर आप नरसिंगों की ईद मनाने वाले होंगे तो उस वक्त पहले नरसिंगे की आवाज़ के साथ अगर हम कब्रों में भी होंगी तो हमारी कब्रें खुल जाएंगी और हम हवा के जोर में पाक रूह की कुव्वत से जो हमें लिबास दिया जाएगा, रूह की कुदरत सा, वो हम बदल जाएंगे और हम यीशु के आमद की तैयारी में होंगे और पलटों की जमात के निशान। ये है नरसिंगों की ईद का मकसद। ये बेमानी बेफजूल ईदें नहीं है, इसका मकसद बाइबल मुकद्दस के अंदर पूरा है। सो खुदा मुझे और आपके इस्लाम को इस तरह से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा का शुक्र। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पाक का शुक्र। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कदूस मेहरबान पाक सुंदा खुदा, खुदा बरे देख, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे बयान करना नहीं आता, लेकिन मैंने तेरे पाक की मदद मांगी और खुदा तेरे खूबसूरत कलाम मुकद्दस को मैसेज खुदा, क्योंकि मैं फ़ानी इंसान हूँ, मेरी अक्ल नाकस है, मेरा इल्म कमज़ोर है। खुदा खुदा जो कुछ तूने अपने लोगों से आज कलाम और अपनी खाना से बयान करना था, तेरे पाक ने मुझे सिखाया है। मैं तेरे पाक के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा हम तुझसे हिम्मत दिलाई पाक मांगते हैं। हम सबों को, बंद ज़हनों को, बंद ख्यालों और आंखों को खोल, तेरी कलीसिया बरकत पाए, तेरी खादमा के गिराना, कलीसिया इन सब खानदानों को बरकत दे, इनको बरकत दे, ब्लेस कर। नरसिंगे की मान हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं खुदा के दूर और लोगों पर खुदा उनकी तमाम कमज़ोरियों को तेरे यीशु नाम से ज़ाहिर करते हैं ताकि लोग बच जाएँ, तौबा करें, तौबा के मौके फल जाए। और खुदा तो जल्द बादलों पे आने वाला है, आखिरी नरसिंगा जब फूंका जाएगा। और इसी यादगारी में कलाम में लिखा है तो यादगारी के लिए ऐसा करना, तो यादगारी में नरसिंगों की मनाते हैं कि हमारा खुदा जल्द बादलों पे आने वाला है, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल फिर उसी लाइफ में देखेंगे जब फरिश्तेगान नरसिंगे बजाएंगे और हम सब बादलों के जोर और रूह की ताकत से भारी बिछाएंगे। खुदा तेरी पाक मर्जी पूरी हो, हमें इस लायक पाना, हमें इस लायक बनाना, क्योंकि ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन तेरी पाक की मदद और तेरी रहम से, तेरे फजल से, तेरे तरस से मुमकिन है। जितनी बहनों ने, तेरी बेटे बेटियों ने तेरा कलाम सुना, इस काम को सिला से हम सब पर रहम कर, हम सबको तैयार कर ईद नरसिंगों की ईद मनाने के लिए और खुदा तेरे क़याम को मनाने के लिए और खुदा तेरी हज़ूरी में हमेशा तेरे साथ चलने के लिए मुक़द्दस मजमा, मुक़द्दस महफ़िल और तमाम
खुदा जिस तरह के तेरे कलाम में लिखी गया है उस तरह की तमाम खुदा तेरे कलाम की बातों को हम अमल में ताकि हम तेरी वो कलीसिया बने जो तुझे पसंद आ सके। खुदा हम सब पर रहम कर, बहनों को बरकत दे, इनके खानदानों को बरकत दे, इनके शहरों को बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, इनके बहन भाइयों माँ बाप की इस्लाम की उनको बरकत दे। खुदा उनको खुशहाल हो जाए। तेरे लोग जब से तुझे जान चुके हैं, पा चुके हैं, खुदा तेरे लोग खुशहाल हो चुके हैं। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मेरा दिल शादमानी शुक्रगुजारी से तेरे शुरू में भरा है। खुदा तूने बहुत सारी बातें अक्लमंदों से छुपाई, नदानों पर जाहिर की हैं। मैं मिन्नत करती हूँ जहाँ जहाँ तेरा कलाम ये पहुँचे वहाँ से लोग इस कलाम को सुने और सिंगों की ईद के लिए तैयारी करें, क्योंकि आखिरी सिंगा फूका जाए तो हम हवा के बादलों के जोर से खुदा के इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। खुदा तेरा शुक्र हो, पर गलती गुनाह खुदा को माफ़ कर। न्यू चर्च कलीसिया को बरकत दे। जो बहन भाई नहीं आ सके उनको आने का तौफीक दे, बारी फजल बख्श। हम अपने सब गुनाहों का इकरार करते, तौबा करते और ज़िंदगी मांगते हैं हम इन तमाम ईदों में शामिल हो, अपने गुनाहों में बरकत पाए। हम सब पर रहकर जो कुछ तेरे लोगों की ज़रूरतें हैं, नीड है, कोई बहन या भाई बच्चा बीमार है तो यीशु के नाम से शिफा पाए। अगर उनकी कोई ज़रूरत है, कोई काम रुका हुआ है तो यीशु के नाम से रुके काम सब होने वाले बंद हो जाएँ और खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हम बड़े ईमान के साथ अपनी रिक्वेस्टें, अपनी दरख्वास्तें खुदा यीशु के नाम पर उसके मज़बा के सामने रखते और ईमान के साथ शक नहीं करते, मांगते पाते हैं उसी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तुझे समाज है, तेरा हमारा पाप होना चाहे, तेरी बात चली जाए, तेरी मर्जी जैसे सवाल पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ मुझे पहुँच के इस तरह को कर माफ़ करते हैं तो भी मेरे कर्ज में माफ़ कर, कोई माफ़ न पड़े दे, कोई तरह शिक्षा तेरी बात शक्ति खुदा तेरा खुदा इस्तेमाल कर अच्छे दिला आपको साथी बख्श।